Hi friend, today we discuss on the new topic at our YouTube channel. I am Sandeep, physics lecturer. Today we discuss on the new topic. Topic is mirror formula. How we can derive the mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula is the relation between distance of object from mirror, comma, distance of image from the mirror and focal length of the mirror. Mean it is the relation between u, v and f, how they are related to one another we can express in the mirror formula. Here we derive the mirror formula, how they are related to one another, how v, u and f are related to one another. Here we use the concave mirror as shown in diagram. This is the diagram. Here mirror M1 and M2. This mirror is concave mirror and we take the pole P, and this is the principal axis of this mirror that passing through its pole and center of curvature. So here we take the object AB that is normally placed on the principal axis having a definite height h1 or h2, we can say anything. Then the incident rays start from A. This is the point A, topmost point of this object is A, and light incident rays start from this object or incoming light from this object. If incident rays parallel to this principal axis, it strike at the point K on the mirror. This is the point K, where they reflect from this point after reflection passing through the principal focus of this mirror. And second rays, this AP strike at point P with incident angle I and reflected by the same angle R. I is equal to R. This is the law of reflection. यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमने एक कॉनकेव मिरर लिया. कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है वो स्मॉल f है और इसका कैपिटल F है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है. एक ऑब्जेक्ट AB लिया हमने. यहाँ जो इंसिडेंट रेज है A पॉइंट से इस मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो अगर ये लाइन हमारी इंसिडेंट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, and light start from point A and strike to the point P. After reflection, this rays intersect to these line intersect at A dash B dash, and final image formation is A dash B dash as shown in diagram. So we discuss here how the distance between the object from the mirror and distance of the image and focal length of this mirror are related. We can derive here the mirror formula. Mirror formula mean it is the relation between u, v and f. Here u, distance of object from mirror, v, distance of image from mirror, and f, focal length of mirror. These are the u, v and f. Here from diagram object AB, after object AB gives, we can say that formed, object AB formed an image
A dash B dash, A dash B dash after reflection from concave mirror. Here we are proving how the mirror formula we can obtain. The mirror formula is 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करना चाहेंगे। मैं आपको 2-3 बातें इसमें क्लियर कर देता हूं जिससे आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको पेयर ऑफ ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है। मेन नेसेसरी कंडीशन टू सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ट्रायंगल। और पेयर ऑफ ट्रायंगल कौन सी लें, कहां से लें, तो फर्स्ट पॉइंट नोट करें। फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान दें कि हमें 2 ट्रायंगल यानी पेयर ऑफ ट्रायंगल P पॉइंट से लेने हैं और 2 ट्रायंगल F पॉइंट से लेने हैं। दिमाग में ये बात बैठा लें। यानी एक ट्रायंगल का पेयर है, यानी पेयर में 2 ट्रायंगल होंगी, 2 ट्रायंगल हमें P पॉइंट से लेनी है, 2 ट्रायंगल हमें F पॉइंट से लेनी है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो पेयर ऑफ ट्रायंगल है इसमें एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट और एक ट्रायंगल में इमेज का होना जरूरी है। इट इज नेसेसरी कंडीशन दैट वन triangle made up by the object and other by the image. It is the necessary condition second. And third condition जो आपकी आसानी कर देगी, थर्ड बात कि हमने तिरछी लाइन का उपयोग नहीं करना। सेलेंट हाइट, सेलेंट रेज और वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल नेवर बी यूज्ड। ये 3 बात अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो मैं मानता हूं कि ये टॉपिक आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। 3 कौन कौन से हैं, आई रिपीट अगेन। पहली चीज है कि ट्रायंगल हमें कहां से सिलेक्ट करनी है। वो 2 पॉइंट हैं आपके, एक P पॉइंट है और एक F पॉइंट है। सिर्फ 2 ही पॉइंट से आपको ट्रायंगल लेनी है पेयर में, यानी P पॉइंट से 2 ट्रायंगल लेनी है, F पॉइंट से 2 ट्रायंगल लेनी है। दूसरी बात, जब भी आप ट्रायंगल सेलेक्ट करें तो एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट और एक ट्रायंगल इमेज के द्वारा बनी होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी ट्रायंगल लें उसकी आपको हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं करना, बेस और परपेंडिकुलर का यूज करना। अगर ये 3 बातें आपको आती हैं तो मैं मानता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एज शोन इन डायग्राम, जैसा हमने डायग्राम में दर्शाया है, हम पहले ट्रायंगल P से लेंगे। ट्रायंगल वो भी कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A-B-P आर सिमिलर। पहली कंडीशन मैंने ये डाल दी। अब पहले ट्रायंगल देखिए कि 2 ट्रायंगल बनती हैं क्या P पे, ABP और A-B-P। दोनों कंडीशन इसने, तीनों कंडीशन फॉलो हुई। पहली कंडीशन हुई कि P पॉइंट्स पे 2 ट्रायंगल लेनी है। एक ट्रायंगल ये ली, एक ये ली। एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट आता है, एक ट्रायंगल में इमेज, दोनों चीज कंडीशन होगी। ये सिमिलर कैसे हैं ये हमें देखना है। तो देखिए ये एंगल है जो आपका 90 है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश इज 90। दोनों एंगल 90 डिग्री है। और सेकंड कंडीशन है कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल A-PB डैश, यानी I इज इक्वल टू R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने दोनों बात कर दी। एंगल एंगल सिमिलरिटी की कंडीशन है ये, और एंगल एंगल ऑफ सिमिलरिटी है तो सिमिलर ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। तो हम यहां से ले लेंगे, हैंस हम कौन सा कंसेप्ट लेंगे। अब देखिए ट्रायंगल की 3 साइड हैं, एक ये नीचे 2 और एक इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं लेना तो हम क्या ले लेंगे, AB, ये साइड ली हमने इसकी, तो इस ट्रायंगल की साइड हो जाएगी A-B डैश, A-B डैश इज इक्वल टू, ये तिरछी लाइन हमने लेनी नहीं तो ये लाइन लेंगे B से P, BP,
और इसकी जो दूसरी साइड लेंगे बी डैश पी। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने नाम दिया और ये कंडीशन कौन सी लगाई है, कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है सिमिलर ट्रायंगल की, रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग side of triangle, side of similar triangle are equal। तो यहां से आप समझ गए होंगे इस चीज को, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बनाएं तो आसान रहे। फिर हम सेकंड ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। देखिए अब मैं सेकंड ट्रायंगल को सेलेक्ट करता हूं। ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल ली और इससे ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी। सेकंड इक्वेशन हमें ध्यान रखना है कि हमें एफ से लेनी है, तो ए डैश बी डैश एफ तो ट्रायंगल बनती है लेकिन ए बी एफ नहीं बनती। तो यहां हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, जो ये के पॉइंट से यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और ये पॉइंट है पी डैश। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां लिखूंगा मैं के पी डैश बी नॉर्मल fall on principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस, इससे बेनिफिट क्या मिल जाएगा, दो ट्राइंगल मिल गई। देन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल तो ये होगी ए डैश बी डैश एफ और दूसरी होगी के पी डैश एफ। के पी डैश एफ आर सिमिलर, ये सिमिलर होगी, कैसे हो जाएंगी, एंगल बी डैश इज इक्वल टू एंगल पी डैश ईच 90। और सेकंड कंडीशन होगी हमारे पास ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू एंगल के एफ पी डैश। ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ये देख लीजिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये भी ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। हेंस अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दी तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये ले लो, एक तो के पी डैश हमने लिख दिया के पी डैश अपॉन इसके वर्टिकल अपोजिट ये हो जाएगी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसकी ये वाली साइड ले लो पी डैश एफ यानी एफ पी डैश और इसके लिए हो जाएगी बी डैश एफ, बी डैश एफ। यहां भी यही कंडीशन लगा देंगे। यहां कंडीशन क्या लगाएंगे, रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, आर इक्वल। लेकिन अब देखिए ध्यान देना है यहां हमें कि जो ये डिस्टेंस है के से पी डैश, ये तो ए और बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम इसको ए बी में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी डैश अपॉन बी डैश एफ। कारण क्या लिखेंगे इसका, कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो के पी डैश के इक्वल है। इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देंगे। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। देन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंफर्म करके देखिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और इसमें सेकंड में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इक्वल। देन इट इज नेसेसरी कंडीशन राइट पार्ट आल्सो इक्वल। और राइट पार्ट इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा, बीपी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू एफ पी डैश अपॉन बी डैश एफ।
ये हम इस तरीके से इक्वेशन को लिख देंगे। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। हमने यहां तक इसको सोल्व कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक ऐसा मिरर लेके चले हैं, कॉन्केव मिरर हैव द स्मॉल अपर्चर, और स्मॉल अपर्चर होगा तो जो पी डैश और पी है वो वेरी क्लोज होंगे। इसको हम एक इक्वेशन नाम दे देंगे, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। बट aperture of mirror is so small, then P dash point is close to P, then FP dash डिस्टेंस जो है वो FP के इक्वल हो जाएगा। एक बात तो ये क्लियर होती है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये भी तो है ना कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। क्योंकि साइन कन्वेंशन जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है कि मिरर के अंदर, जब हम मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, हाउ साइन कन्वेंशन टेकन इनटू द मिरर, देन फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहली कंडीशन है कि सारे के सारे डिस्टेंस हैं पोल ऑफ मिरर से मेजर किए जाएंगे, इसलिए ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है कि ये सारे के सारे डिस्टेंस पोल से इक्वल होने चाहिए। बी से पी पोल से है, बी डैश पी भी पोल से, लेकिन एफ पी डैश नहीं था, और हमारा अपर्चर बहुत छोटा होने के कारण पी डैश पी के क्लोज है, इसलिए एफ पी डैश को एफ पी कह देंगे। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है बी डैश एफ है, ये आप देखें तो ये वाला डिस्टेंस है, इसको मैं यहां से अलग निकालने की कोशिश करता हूं। बट फ्रॉम डायग्राम हम डायग्राम को मैच करके देखिए, बी डैश एफ प्लस एफ पी बराबर है बी डैश पी, इसके इक्वल है। देख लीजिए, बी डैश से एफ और एफ से पी, इन दोनों का सम इस टोटल के बराबर हो जाएगा। यहां से बी डैश एफ की वैल्यू अपनी निकल सकती है, क्या हो जाएगी, बी डैश पी माइनस एफ पी। ये इक्वेशन है दोनों की दोनों, आप थर्ड इक्वेशन में पुट करें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि नोट्स बनाएं, कॉपी में लिखें तो आपको आसानी हो जाए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब हमें क्या करना है, हम जो टारगेट लेके चले हैं अपना, वो मेन फोकस यही था कि सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मापे जाएंगे, इसलिए सभी को हम पोल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। इनको पुट इनटू थर्ड इक्वेशन में लिख देंगे। यहां लिखूंगा पुट इनटू इक्वेशन थर्ड। जैसे ये थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे, ये इक्वेशन होगी हमारी बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू एफ पी डैश किसके इक्वल होगी, एफ पी के, इज इक्वल टू बी डैश एफ, ये निकाल लिया, बी डैश पी माइनस एफ पी। यहां आने के बाद हमें पता लग गया कि ये सारे डिस्टेंस पोल पे हमने कन्वर्ट कर दिए। जैसे ही पोल पे कन्वर्ट हुए तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे करना है, बी से पी का डिस्टेंस मापना है, बी डैश से पी का मापना है, एफ से पी का डिस्टेंस मापना है। देखिए, ये हमारा डिस्टेंस बी से पी का डिस्टेंस ये लेना है, और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। बी पे कौन है, ए बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है माइनस यू, तो बी से पी का डिस्टेंस हो गया माइनस यू। बी डैश पी हमारा इमेज है, ये डिस्टेंस देखोगे तो यहां से यहां तक हमारी इमेज है, और इमेज ये भी लेफ्ट साइड बनी है तो माइनस की वी हो जाएगी, और एफ से पी माइनस एफ, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। अब इनको क्या करेंगे, हम इक्वेशन में पुट कर देंगे ऊपर, और जैसे ही ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, पुट इनटू अबो इक्वेशन, पुट इनटू अबो इक्वेशन, क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करो, माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ वी
माइनस ऑफ एफ, यहाँ बी डैश पी की वैल्यू रखी तो माइनस यू, सॉरी वी, माइनस ऑफ वी, माइनस ये पहले है और माइनस का एफ यहां आएगा, तो ये क्या बन गया, माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एफ और नेगेटिव ऑफ v प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम यहां माइनस से माइनस काट सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये माइनस से माइनस कटा तो ये क्यों नहीं कटा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में आप देख लीजिए कि ये माइनस का u है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, अगर आप इसको चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा। माइनस यू की माइनस वी से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस यूवी। ये माइनस का u है, ये प्लस का f है, एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस यू एफ हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वी की माइनस एफ से करोगे तो प्लस वी एफ हो जाएगा। इस यू एफ को उसी डायरेक्शन में लेके जाइए तो ये हो गया यू वी बराबर है यू एफ प्लस वी एफ। ये इक्वेशन हमारी मिल जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई यू वी और एफ, तीनों के मल्टीप्लीकेशन से हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या मिलेगा, मैं यहां इसको लिख के दिखा देता हूं। क्या मिलेगा हमें, इस पार्ट को यू वी, इसको डिवाइड करना है यू वी एफ से, इज इक्वल टू, फिर यू एफ है हमारा, इसको भी डिवाइड करना है यू वी एफ से, और ये वी एफ है, इसको भी डिवाइड करना है यू वी एफ से। जो कटे उसको काट दीजिए। यहां आप देखेंगे यू वी से यू वी कटेगा, 1 अपॉन एफ बचेगा। यहां देखिए u और f दो कटेंगे तो v बचेगा 1 अपॉन वी, प्लस यहाँ v और f दो कट जाएंगे तो u बचेगा u। और ये आपका मिरर फॉर्मूला है, यही होता है मिरर फॉर्मूला। दिस इज मिरर फॉर्मूला, दिस इज मिरर फॉर्मूला। ध्यान रखना है ये मिरर फॉर्मूला सभी मिरर के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स है कॉनकेव है। इट वैलिड फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ। ये बात ध्यान रखें, ये दोनों के लिए वैलिड होगा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इससे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रख लें यहाँ पे कि जो कॉन्वेक्स होता है हमारा मिरर, और एक होता कॉनकेव मिरर, ये मिरर हैं दोनों, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें प्लस एफ होती है और इसमें माइनस एफ होती है, यानी फोकल लेंथ प्लस माइनस में ऐसे ली जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारा डेरिवेशन था। तो आपको यहां तक ये समझ में आया होगा कि कैसे मिरर फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला है, ये चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, इक्वली वैलिड फॉर द बोथ टाइप ऑफ मिरर। ये इक्वली वैलिड होगा चाहे वो आपका कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। एक यही बात चलती है मैग्निफिकेशन की, वो भी मैं यही चर्चा कर देता हूं। मैग्निफिकेशन m से लिखा जाता है। ये क्या होती है m, ये होती है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज h डैश, और इसको h कह सकते हो। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज को मैंने h डैश से नाम दिया है और ऑब्जेक्ट को मैंने h के नाम से दिया है। हमें यहां ध्यान रखना है कि m की वैल्यू जो होगी, ये दो वैल्यू हो सकती हैं m की वैल्यू। एक वैल्यू हो सकती है इसकी पॉजिटिव और एक वैल्यू हो सकती है इसकी नेगेटिव। तो दो तरह की इसकी वैल्यू हो सकती है।
आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा इमेज के साथ, और m की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा। इफ m इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये होगा कि इमेज है वो इमेजिनरी कोमा इरेक्ट, ये दो टाइप की बनेगी, यानी वो काल्पनिक और सीधी होगी, इरेक्ट होगी। और m की अगर वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है वो रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये बात ध्यान रखना है, यहां जो इमेज बनेगी, इमेज वो आपकी इमेजिनरी और इरेक्ट होगी, और यहां जो इमेज बनेगी वो इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये आपका मैग्निफिकेशन से रिलेटेड था, ये हाइट की फॉर्म में है। अगर आपको इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस के रूप में लेना हो तो ये वैल्यू v अपॉन यू के बराबर होती है, यहाँ माइनस साइन होता है, इसमें माइनस v अपॉन यू के इक्वल होती है। ये हमारे इससे रिलेटेड जो टॉपिक था मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड, हमने मिरर फॉर्मूला बनाया, ये कॉनकेव के लिए बनाया है, ये इक्वली वैलिड है कॉन्वेक्स के लिए भी। जब भी आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसके साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन यूज करें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आपके आंसर एक्यूरेट निकलेंगे। हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।